Hello everyone, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have completed chapter 10 light of class 10 science up to reflection. हमने अपने previous video में reflection का part complete कर लिया था. I have told you what is reflection. I have told you what are the different types of reflection. We have discussed about the objects, images and the type of images. We have also discussed about the types of mirrors, spherical or curved mirrors and the plane mirrors, and we have also completed the image formation by the two kinds of spherical mirrors, which were concave mirror and convex mirror. And you also know about the mirror formula, sign convention as well as the linear magnification now. So today we will start a refraction. Refraction क्या होता है students? You are seeing there are many media here around us. बहुत सारे medium होते हैं हमारे around. Solid, liquid और gaseous means आपके around air है. That is a kind of medium जिसके through कोई चीज़ travel कर सकती है in nature. We are having some solid materials like aluminium, iron and other things. We are having some liquid like water, oil, kerosene oil, that may be turpentine oil and many kinds of the liquids. ये सब क्या है? ये सब medium है. So when light travels from one medium to other, light जब travel करती है एक medium से दूसरे medium में, then there is a change in its path. Light का path क्या होता है? If I ask you, then light travels in a straight line. Light जो होती है straight line में travel करती है, so it should go straight. But in some of the phenomena this is not happening. What is happening there? The ray of light changes its path on entering from one medium to other. Let's take an example here. You are seeing this glass of water. तो आप देख रहे हैं the air is around us. हमारे चारों तरफ क्या है? Air है. There is a glass. ये ग्लास टम्बलर और ग्लास जो है ये भी कांच ग्लास का ही बना हुआ है. देन वी हैव वाटर इनसाइड इट. हमारे पास यहाँ पे पानी है. देन व्हाट हैपन्स, अगर मैं ये पेंसिल इस पानी के ग्लास में रखती हूँ, नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व द चेंजेस हेयर. आप देखेंगे कि जो पेंसिल है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट इनफ. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. आप देखेंगे कि इसका जो पेंसिल है दैट इज़ चेंजिंग इट्स पाथ. जो उसका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में वो पेंसिल हमें दिखनी चाहिए, दैट इज़ नॉट सीन हेयर. सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग? दैट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन. कैसे? वी विल सी थ्रू अ डायग्राम हेयर. बिफोर दैट यू नीड टू सी दिस ग्लास स्लैब. ये एक क्यूबॉइडल ग्लास स्लैब होता है, उसी का ही डायग्राम वी आर गोइंग टू सी हेयर. तब आपको समझ आएगा व्हाट रिफ्रैक्शन इज़. Now see, a ray of light is passing from air to glass. ये क्या है? This is air. आपको पता है आपके अराउंड सब कुछ एयर, द मीडियम हेयर इज एयर और एयर में ही ये रखा हुआ है. देन ये एयर है, दिस वन इज ऑल्सो एयर. ये जो सरफेस आप देख रहे हैं दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक हेयर इज मेड अप ऑफ ग्लास. जो मैंने आपको अभी दिखाया था ग्लास स्लैब, ये कांच का बना हुआ, ग्लास का ही बना हुआ मटेरियल है एंड इट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़. और ये यहाँ पे हमने इस तरीके से दिखा दिया है ऑन द बोर्ड. नाउ दिस इज ग्लास, दिस इज एयर. देन व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट strikes the normal of this glass slab or the surface, then what happens? It moves towards the normal. ये अपने पाथ से जो उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था थोड़ा बेंट हो जाती है. Then if we put another perpendicular line here, that is n dash, then what happens? It moves out
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही थी, इट बिकम्स here it is towards the normal, then after striking here it moves away from the normal। तो ऐसा क्यों हुआ, लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था because light travels in a straight line, but लाइट का अब आप देख रहे हैं पाथ क्या हो गया, ये ऐसे आई, then it bends, then it moves away from the normal। तो यहाँ पे कितना इसमें चेंजेस आ गया है इसके पाथ में, यही रिफ्रैक्शन है। बट द थिंग इज हाउ इज इट हैपनिंग, इसका रीज़न क्या है, वाई द लाइट इज चेंजिंग इट्स पाथ, लाइट अपना पाथ कैसे चेंज कर लेती है। सो फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट द टाइप ऑफ मीडियम हेयर। मीडियम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, RARER, optically rarer, and one is optically denser medium, और एक होता है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये जो सॉलिड लिक्विड चीज़ें हम देख रहे हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। होता क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज अ काइंड ऑफ मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। जहाँ पे लाइट की स्पीड फास्ट होती है, इट ट्रेवल्स विद अ वेरी फास्ट स्पीड, तो उस मीडियम को हम रेयर मीडियम बोलते हैं। तो यू विल राइट विच हैज़ स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट, लाइट की स्पीड क्या है, फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। एंड व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑन द अदर हैंड द मीडियम हैविंग द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ वेरी स्लो, सो दैट इज अ डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, स्लो है, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, लाइट की स्पीड वहाँ पर स्लो है। रेयरर और डेंसर से आपको क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, व्हेन दे कम क्लोजर, जब वो बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे, डेंस हो जाएगा मीडियम, देन इट इज़ टिपिकल फॉर अ लाइट रे टू मूव फास्ट। तो वहाँ पे उसको फास्ट ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, सो इट स्लोज डाउन इट्स स्पीड। जबकि रेयरर मीडियम में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर फार अवे, पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, तो लाइट रे को स्पेस मिलती है फास्टली ट्रैवल करने के लिए, सो दैट इज द रेयरर मीडियम। अब होता क्या है, वी हैव टू रूल्स हियर, वन इज व्हेन रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser medium, and one is when ray of light passes from denser to rarer medium। दो केसेस हैं यहाँ पे। The case one is when a ray of light is traveling from rarer to denser medium, rarer से denser medium में ray of light जा रही है, one case is that। The second case is the ray of light is traveling from denser to rarer medium। ray of light कहाँ travel कर रही है, rarer से denser medium की तरफ। Then what happens, दोनों ही cases में जो rule होता है वो क्या है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, दिस इज द रेयर मीडियम, दिस इज ऑल्सो अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। तो आप देख रहे हो इसमें the first of all the ray of light is moving from rarer to denser medium, and in the second case the ray of light is traveling from denser to rarer medium। then यहीं पे आप देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, मीन्स उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, तो वो बेंड हो गई। अगेन व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो रेयर में उसकी स्पीड फिर से फास्ट हो गई, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो चीज़ फास्ट होगी, फास्ट ट्रैवल करेगी, तो वो अवे जाएगी, और जहाँ स्पीड स्लो है इट विल कम टुवर्ड्स। तो यही आपको ध्यान रखना है, दिस इज द रूल, व्हेन रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal। आपको याद रखना है क्या करेगी, bends towards normal, normal की तरफ वो bend करेगी। And what about from denser to rarer medium? When ray of light travels from denser to rarer medium, it moves away from
नॉर्मल। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वन इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दैट इज अबाउट द रिफ्रैक्शन। अब आपने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन लाइट के पाथ में आने वाला चेंज है। लाइट वॉज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट सडनली इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, then what happens, there is a change in its path, और वो चेंज ही क्या कहलाया जाता है, रिफ्रैक्शन, ड्यू टू विच वी आर सीइंग मैनी फिनोमिनन अराउंड अस। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ऑफ दिस ग्लास ऑफ वाटर। आपने इसमें देखा कि ये पेंसिल कैसे, यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो। आप अपने घर में भी यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर देयर, यू मे हैव अ पेंसिल और पेन। आप रख करके देखिएगा पेंसिल की जो पोजीशन है आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखेगी, दैट इज ड्यू टू द रेस। क्योंकि हम तो क्या देख रहे हैं, जो लाइट रेज हमें टकरा के मिल रही हैं ऑब्जेक्ट से, ड्यू टू दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन आवर रेटिना, तो हम तो वो सब देख रहे हैं। तो दैट दीज चेंजेस आर शोइंग और कंटिन्यूइंग दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन है। आई होप अब रिफ्रैक्शन क्लियर होगा आपको। तो रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, दिस इज अ रिफ्रैक्शन। नाउ वी आर सीइंग मैनी रेज अराउंड इट। ये क्या होती हैं, दिस वन इज नॉर्मल। आपको पता है किसी भी सरफेस पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट है which is striking or entering from one medium to other, वो कहलाई जाती है इंसिडेंट रे। दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। देन a ray of light which bends towards the normal or changes its path is known as a refracted ray। इस रे को हम बोलेंगे refracted ray। एंड द रे ऑफ लाइट विच इमर्जेज आउट फ्रॉम दैट मीडियम, जो बाहर निकल रही है, इमर्ज कर रही है, दैट इज नोन एज द इमर्जेंट रे। उस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ओके, observe the diagram carefully. Here you are seeing a ray of light which strikes the given surface that or enters the another medium is incident ray, which is bending towards the normal here, means which changes its path is the refracted ray, then which emerges out from the medium, तो वो emergent ray होगी। Same the angles, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दैट इज अबाउट द एंगल्स एंड द रेज। अब आप देख रहे हैं देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट इट बेंड्स लाइक दैट, इसका पाथ अब ये हो गया है एंड दिस चेंज इज नोन एज लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, जो ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस कि भाई लाइट को जाना कहाँ था वो आ कहाँ गई है, अपने पाथ से कैसे चेंज हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, तो वो जो चेंज है वही डिस्टेंस आपका कहलाया जाएगा लेटरल शिफ्ट। नाउ we have certain topics here which are often asked in board examination। वो क्या है, that is refractive index। अब आता है refractive index। what is refractive index? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप अगर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो तो अभी आपने देखा, बिफोर दैट यू मस्ट नो अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो लॉज क्या हैं, The first law
of refraction says that incident ray, refracted ray एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जितनी भी रेज होती हैं वो सेम प्लेन पे ही आ जाती हैं। आपने देखा था मैंने सेम बोर्ड पर ही सारा ट्रेस हो गई थी हमारी रेस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये सब क्या है, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। तो यही फर्स्ट लॉ होता है, ये सारी रेस कैसे होंगी, सेम प्लेन में होंगी। एंड द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। According to the name of the scientist, the second law of refraction is known as Snell's law, and Snell's law states that ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction is always a constant. इसका क्या मतलब है, अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसका जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो कुछ कांस्टेंट, कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट। मीन्स अगर रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दिस कांस्टेंट विल ऑलवेज बी 1.5। ये हमेशा 1.5 होगा इन केस ऑफ ग्लास। In case of water, if a ray of light is traveling from air to water, this will be 1.33। तो ये एक कांस्टेंट होगा। तो व्हाट स्नेल्स लॉ सेज हियर, स्नेल्स लॉ सेज और स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मीन्स जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो जो उसका रिफ्रैक्टिव यहाँ पे पॉइंट है ये, दिस विल बी कांस्टेंट। ओके, एंड दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमने रेशियो निकाला है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, तो साइन 60 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी आपने देखा बेंड हुआ था तो ऑलवेज इट इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट विल बी साइन 30 सपोज। तो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, दोनों को वी विल डिवाइड एंड विल गेट अ कांस्टेंट, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। सपोज इट इज 40/20, तो दिस विल बी 2, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कांस्टेंट वील गेट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, refractive index is the ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction. But there are two more types of refractive index. Now we have two terms here. One is relative refractive index and the other is absolute refractive index. One is relative refractive index and other is absolute refractive index. अब क्या होता है, when we are seeing here the speed of the light in different medium, अभी हमने बात करी थी कि लाइट की स्पीड जो डिफरेंट मीडियम में चेंज होती है, दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्पीड के टर्म्स में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट्स रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट of one medium to speed of light in other medium light, but these two media should be other than एयर। अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दो मीडियम, सपोज ग्लास एंड वाटर आर देयर, तो वो जो दोनों मीडियम हैं उन दोनों की स्पीड का अगर हम रेशियो निकालें, दैट रेशियो विल बी नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो दूसरा आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अगर आपका एक मीडियम एयर है, सपोज एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, तो हम उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना कह करके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। एंड इफ देयर आर टू मीडिया other than air, then we will have
we will give the name here the relative refractive index. सपोज ग्लास और वाटर है तो हम उसको relative refractive index कहेंगे. Refractive index is denoted by n और eta. This is the letter here. तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें, दिस इज n इज इक्वल टू c अपॉन v. c अपॉन v. अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइट की स्पीड एयर में. दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर. बट अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आता है, यू आर गिवन द स्पीड ऑफ 2 मीडियम और 1 मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देन यू कैन डिवाइड, तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहलाया जाएगा. बट simple or the correct term for this type of refractive index is absolute refractive index. This is n is equal to c upon v. What is c? c is the speed of light in air or vacuum. ये c क्या होता है, light की speed in air और वैक्यूम, एयर में या वैक्यूम में, स्पेस में लाइट की स्पीड क्या है, that will be known as, that will be denoted by c here. तो c क्या है, लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम में, एंड इट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज ऑलवेज टेकन एज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. देन व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. जो भी मीडियम है उसकी स्पीड अगर आप निकालें तो वो v से डिनोट होगी. तो यहाँ ये n क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, वेदर इट्स ग्लास, इट्स वाटर, इट्स केरोसिन, इट्स टर्पेंटाइन ऑयल और एनी अदर थिंग. सो दैट इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाउ टू कैलकुलेट इट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, देन ओनली द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. Now C, n is equal to c upon v. This is the formula. Okay. Now we are given that a ray of light is entering from air to glass. Air से glass में enter कर रही है and with a refractive index 1.5. जो glass है उसका refractive index क्या है, 1.5. इट डजेंट हैव एनी यूनिट, क्योंकि ये रेशियो निकाला है आपने सिमिलर चीज़ों का. इसकी यूनिट भी एम मीटर पर सेकेंड है, एसआई यूनिट, इस स्पीड की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है. बोथ विल बी कैंसिल आउट, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट हैविंग एनी यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये इंडेक्स है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिया गया है इसको. दिस इज 1.5 फॉर ग्लास, इसीलिए मैंने यहाँ पर जी लिख दिया है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास इज गिवन है. And you have to calculate Vg, speed of light in glass. हमें क्या कैलकुलेट करना है कि भाई लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से ग्लास में. फॉर एग्जांपल हमारा जो एक ग्लास स्लैब था, तो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट. देन what will be the speed of light in glass? ग्लास में क्या स्पीड ऑफ लाइट होगी if the refractive index of glass is 1.5? सो फॉर्मूला में पुट कर देंगे सिंपली हम n की जगह क्या लिखेंगे, 1.5. c हमारा क्या होता है, वी नो दैट इट इज 10 to the power 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. If it is given, mostly it is given in the numerical problems, but if it is not given, you have to learn this. The speed of light in air is 3 × 10 to the power 8 meter per second. Then we have v, तो v we have to calculate. v क्या आ जाएगा इधर से, Vg is equal to 3 × 10 to the power 8 divided by 1.5. ये डेसिमल हटेगा यहाँ से, 0 will be placed here. 15 2s are 30. Then the speed of light in glass will be
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से SI यूनिट कैसे आ गए मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वे आर कैलकुलेटिंग स्पीड है, और यहाँ से आपकी एक SI यूनिट तो बच रही है ना मीटर पर सेकेंड, इसी की तो कोई यूनिट है नहीं, तो मीटर पर सेकेंड विल बी द SI यूनिट ऑफ स्पीड है। सो दैट्स द वे हाउ वी कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। वी हैव ऑल्सो लर्नड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब क्या आता है इसमें, लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज आर द डिवाइसेस विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू मिरर्स। मिरर्स को ज्वाइन करके जो ऑप्टिकल डिवाइस बनती है वो लेंस कहलाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द लेंसेज इन योर स्पेक्टिकल्स, आपके जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनमें लेंसेज हैं, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जहाँ पर आपके लेंसेज होते हैं। तो लेंस हम इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, हेयर वी हैव टू लर्न अबाउट द लेंसेज। ओके, सो लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं, लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, एंड वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। Similarly, we were having concave mirror and the convex mirror. Here, the concave lens is a diverging lens. ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड कर देता है। And the convex lens is a converging mirror. ये एक converging mirror होता है जो क्या करता है, रेज को, पैरेलल रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देता है। नाउ व्हाट अबाउट दिस शेप है, कॉनकेव लेंस जो होता है दैट इज थिक एट द एजेस, वो एजेस पर से थिक होता है, एंड थिन इन द मिडल, और मिडल में थिन होता है। शेप से आप रिमेंबर कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस इज कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज थिन एट द एजेस एंड थिक इन द मिडल। आप देख रहे हो एजेस पे थिन है, मिडल में थिक है, ये एजेस पे थिक है, मिडल में थिन है। दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। आपने देखा एक ये मिरर और एक ये मिरर, दोनों को ज्वाइन कर दिया, लेंस बन गया। सिमिलरली है देयर इज वन मिरर अनदर मिरर, ये ज्वाइन हो गया, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, बट इट इज नॉट पॉलिश्ड। मिरर हम उसे ही कहेंगे जिसको हमने एक साइड पॉलिश कर दिया है, बट हम यहाँ पे सरफेसेस ले रहे हैं ओनली, है ना, कि कॉनकेव आपका जो है कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस, उनको ज्वाइन करके वी आर फॉर्मिंग द लेंसेज हेयर। तो ये कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, रेस को ऐसे स्प्रेड कर देता है, और ये क्या करता है, रेस को पैरेलल को ऐसे कन्वर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड, और द पैरामीटर ऑफ लेंसेज। नाउ सी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आप एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, देन वी विल टेक इट्स सेंटर। दिस सेंटर इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। उसके बाद अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू, सॉरी इट्स नॉट अ रे ऑफ लाइट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन passing through the optical center. This is known as the principal axis. इस लाइन को हम बोलेंगे principal axis. Then यहाँ पे दो फोकस, अगर आपने इस O से यहाँ F1 तक की डिस्टेंस ली है 20 सेंटीमीटर, then this will be twice of F1, that is 2F1. इधर from right hand side it will be F2 and the twice of F2, that is 2F2.
F2, ये 4 पॉइंट्स हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे रखने हैं फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज ऑन अ कॉन्केव मिरर। ये तो बात हो गई सॉरी लेंस की, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में हमें क्या ध्यान रखना है कि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, अ कन्वर्जिंग लेंस, इट हैज first focus f1, then twice of f1, then we have f2 and twice of f2. These 4 parameters we have to keep in mind. Focal length की बात आएगी तो this is the focal length. The distance between O and f1 is a focal length. Clear? And these all distances are same. जितना डिस्टेंस O और f1 का है उतना ही f1 और 2f1 का है, जितना डिस्टेंस O और f2 का है उतना ही इसका है, एंड सिमिलरली द 2f1 एंड here 2f2. Now this was about convex lens. Now let's see concave lens. Concave lens is a diverging lens. थिकर बनेगा एजेस पे, मिडल में थिन. Here we will write this. There is a straight line called principal axis. यहाँ f1, 2f1, f2, 2f2. This is the concave lens. ये बात हो गई आपके concave lens की, उस पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. And we will continue the image formation by convex lens as well as the concave lens. We will also talk about the rules for the image formation by a concave lens and a convex lens in our next video. So till then, revise all these contents which you have studied today. Have a very nice day.